આજે 3 રાજ્યોની ચૂંટણીનું પરિણામ આવનાર છે, જેમાં ત્રિપુરાની 60, મેઘાલય નાગાલેન્ડની 59 ચૂંટણીનું આજે પરિણામ આવનાર છે। 3 રાજ્યો માટે મતગણતરી સવારે 8 વાગ્યાથી શરૂ થઈ ચૂકી છે અને ત્રણેય રાજ્યોમાં ભાજપ અને ગઠબંધન હાલમાં આગળ ચાલી રહ્યું છે। ત્રિપુરામાં પહેલીવાર ચૂંટણી લડી રહેલી ત્રિપુરા મોથા પાર્ટી પણ 10થી વધુ બેઠકો પર આગળ છે। ત્રિપુરાની 60 બેઠકો માટે મતગણતરી હાથ ધરાઈ છે। મેઘાલય અને નાગાલેન્ડની 59 બેઠકો માટે મતગણતરી સવારે 8 વાગ્યાથી તેની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। ત્રિપુરામાં 60 બેઠકો માટે 16 ફેબ્રુઆરીએ મતદાન થયું હતું, જ્યારે મેઘાલય નાગાલેન્ડમાં 27 ફેબ્રુઆરીએ 59 બેઠકો માટે મતદાન થયું હતું। ત્રિપુરામાં 89.90%, જ્યારે નાગાલેન્ડમાં 84% અને મેઘાલયમાં 76.27% મતદાન થયું હતું। ત્રિપુરામાં કોંગ્રેસ અને લેફ્ટ વચ્ચે ગઠબંધન છે। ત્રિપુરામાં ભાજપ અને આઈપીએફટી વચ્ચે ગઠબંધન છે, જ્યારે ત્રિપુરામાં ટીએમસી એકલા હાથે ચૂંટણી લડી રહી છે। મેઘાલયમાં એનપીપી ધ નેશનલ પીપલ્સ પાર્ટી એકલા હાથે ચૂંટણી લડી રહી છે। મેઘાલયમાં કોંગ્રેસ એકલા હાથે ચૂંટણી લડે છે અને ભાજપ પણ એકલા હાથે ચૂંટણી લડે છે। નાગાલેન્ડમાં એનડીપીપી અને ભાજપનું ગઠબંધન છે, જ્યારે નાગાલેન્ડમાં કોંગ્રેસ એકલા હાથે ચૂંટણી લડી રહી છે। નાગાલેન્ડમાં એનપીએફ એટલે કે ધ નાગા પીપલ્સ ફ્રન્ટ એકલા હાથે ચૂંટણી લડે છે। તો આજે 3 રાજ્યો ત્રિપુરા, મેઘાલય અને નાગાલેન્ડનું જે વિધાનસભાની ચૂંટણીનું પરિણામ છે તે આવનાર છે, ત્યારે શરૂઆતી રૂઝાન સામે આવી રહ્યા છે અને શરૂઆતી રૂઝાનમાં ત્રિપુરામાં ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે તે 39 બેઠકો સાથે અત્યારે આગળ, લેફ્ટ 8 બેઠકો સાથે આગળ છે, જ્યારે ટીએમપી 13 બેઠકો સાથે આગળ છે, જ્યારે કે નાગાલેન્ડની પણ જે 59 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી, જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની ગઠબંધનવાળી જે સરકાર છે, જે પાર્ટી છે, 51 બેઠકો પર આગળ વધી રહી છે। એટલે કે તમામ વિધાનસભામાં ક્યાંક ભાજપનું ગઠબંધન જ્યાં છે ત્યાં હાલમાં આગળ વધી રહી છે। મેઘાલયમાં એનપીપી 20થી વધુ બેઠકો પર અત્યારે આગળ છે, ભાજપ 12 અને એનપીપી જે 24 બેઠકો સાથે આગળ છે, એટલે કે 2 રાજ્યોમાં અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ ચાલી રહી છે, જ્યારે મેઘાલયમાં જો વાત કરીએ તો એનપીપી 24 બેઠકો સાથે આગળ છે। મેઘાલય નાગાલેન્ડમાં 27મી ફેબ્રુઆરીએ, જ્યારે ત્રિપુરાની 60 બેઠકો માટે 16મી ફેબ્રુઆરીએ મતદાન થયું હતું। अजय यादव हमारे साथ ही फोन लाइन पर जुड़ाई गया है। अजय, शुरुआती रुझान में हाल में क्या परिणाम सामने आ रहे हैं और कितने बजे तक पूरा जो विजन है वो स्पष्ट हो सकता है? परिणाम कितने बजे तक आ सकते हैं? देखिए, भारत में इस साल जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें 3 राज्य, खास करके अगर मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड की अगर बात करें तो इसमें मतगणना का दौर जारी है। विधानसभा के चुनाव जो वोटिंग हुई थी वो पहले हो चुकी है और आज मतगणना का दिन है, लेकिन जैसा एग्जिट पोल के नतीजे में परिणाम आया था, ठीक उसी तरह का परिणाम आज देखने को मिल रहा है, जिसमें क्लियर मेजोरिटी से अभी जो पोस्टल बैलेट की गिनती जो चल रही है उसमें क्लियर मेजोरिटी से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी एकदम आगे दिखाई दे रही है, उसको फुल मेजोरिटी मिल चुकी है। इसी तरह से अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में एनडीपीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। एनडीपीपी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें एनडीपीपी 40 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और वहां भी 42 सीटों पर जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी अलायंस के पक्ष में है। जैसा कि एग्जिट पोल ने पहले मेघालय के विधानसभा चुनाव के लिए कहा था कि इसमें हंग असेंबली हो सकती है, ठीक उसी तरह के अभी परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। हालांकि पिछली बार जो सरकार भी थी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मेघालय में एनपीपी की ही सरकार चल रही थी, लेकिन फिलहाल वो 23 सीटों पे आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पे आगे चल रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे थे, ठीक उसी तरह के जो रुझान है अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शुरुआती 1 घंटे तक जो पोस्टल बैलेट की जो गिनती थी वो हुई है, अब एक्चुअल वोटों की गिनती शुरू हुई है। माना जा रहा है कि 12 बजे तक लगभग सारे परिणाम, यानी कौन पार्टी किस राज्य में किस तरह से जीत रही है, कितनी सीटों पे आ रही है, लगभग रुझान क्लियर हो जाएंगे, और माना जा रहा है कि 3 बजे से पहले सारे परिणाम आ सकते हैं। जी बिल्कुल, 3 बजे से पहले परिणाम आ सकते हैं, लेकिन त्रिपुरा, अगर नागालैंड में देखा जाए तो बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार जो है वो सरकार बनाते हुए दिख रही है। इसमें कितना बदलाव आ सकता है, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं उसमें काफी सीटों में अंतर दिख रहा है? नहीं, देखिए, अगर त्रिपुरा की अगर बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ कि 2018 में सीपीएम की बनी बनाई सरकार, जो कि लंबे समय से चल रही थी, उसका एकमुश्त एकाधिकार था, उसको चुनौती देने की किसी के साहस नहीं थी।
उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की कोई स्थिति ऐसी नहीं थी, सीटें ऐसी नहीं थी कि त्रिपुरा जैसे राज्य में जीतने की क्षमता रखती हो। लेकिन 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सीपीएम को चुनौती देकर के वहां पे सत्ता पे काबिज हुई, तो इस बार यही सवाल था कि क्या पिछली बार जो सीपीएम को हराई थी भारतीय जनता पार्टी अपनी बादशाहत को कायम रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। लेकिन जिस तरह के रुझान अभी आया है पोस्टल बैलेट से, उससे एक साफ संकेत दिखता है कि क्लियर मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में अपनी सरकार बनाएगी। फिलहाल रुझानों में 39 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। हालांकि अकेले तौर पे त्रिपुरा में 55 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि एक छोटी सी ट्राइबल पार्टी है जिसके साथ 5 सीटों का सहयोग है और उसके साथ चुनाव लड़ रही है। तो एक तरह से कह सके त्रिपुरा में अकेले दम पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है। वही नागालैंड की अगर बात करें तो वहां पर एनडीपीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है। 40 सीटों पर एनडीपीपी वहां पे चुनाव लड़ रही है, जबकि 20 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और ये दोनों पार्टियां अकेले दम पे कह सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है वो नागालैंड में भी अकेले दम पे सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेघालय की जरूर बात है कि मेघालय के बारे में पहले जो एनपीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, ठीक चुनाव से पहले दोनों पार्टियां अलग हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी मेघालय में अकेले चुनाव लड़ रही है और एनपीपी जो है अकेले चुनाव लड़ रही है। हालांकि एनपीपी की ही सरकार थी, लेकिन कहा जा रहा है कि जब वोट पड़ गए थे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एनपीपी के जो मुखिया है या चीफ मिनिस्टर है उनसे मुलाकात की है। संभावना यही जताई जा रही है कि वहां भी मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी एनपीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाएगी। इसके संकेत शुरुआत में दिखने लगे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय।